Good afternoon, students. Welcome back once again to now start to the BSc classes. Today's topic is related to the BSc third year. This is the first time and the first day which regarding to the BSc third year, and start now. You know that very well about to there are the three papers in the BSc third year classes, first, second and third. First is the related to the parasitism, second is the biotechnology, immunology and others, and third paper is the ecology, microbiology, ethology and toxicology. So there kinds of the so many kinds of the streams which are joined together and form to the different kinds of the papers, first and second and third. So that to the third paper which regarding to the ecosystem. So today's topic is related to the ecosystem. The first of all to know about to the what is the ecology, because the ecosystem which studied in the other branch, as you know that very well, that is called to the ecology. So today's topic is the ecology, is the third paper of the BSc third year zoology. So now know that what about to the ecology. So we are going now to know all the organism. Do you know that very well? What is the organism? What about to the organism? Organism is the living things which are have to the capability to performing to the all the functioning and the movement, physiology, all about things. So all the organisms which are related to each other, which live in the special areas, particular areas, or the geographic spaces. So you are just considered about the animals or the plants or the microbes, so that called to the organism which are interrelated to each other, inseparably to each other, inseparable. So all organisms which are inseparably related to their physical and the biological, physical or the biotic environment. So first of all, for the convenient and the proper study of the ecology and the ecosystem, just know that what about to the environment and what is their system, what is the impact and the forces and the relationship in between to their animals and the plants and the microbes. So that there are so many things which are comprises in between, and that's to the showing as a unit, and that's representing to the particular systems. That system is called the ecosystem, and the ecosystem is earlier to mention that about to the this is the study into the different discipline is called the ecology. So that to the now about what about to the ecology. Ecology is the branch of the science. So that as you mentioned that to the all the organisms inseparably to the physical and the biological or the biotic environment. First of all, what about to the environment? Environment is the space. Environment is the area. Environment is the special zones or the geographic areas where the living and the non-living are all the organisms which are live, doing work and to the performing all the functions, and finally you can say that is the alive of the all organism. So proper the area which are impacting, which are influencing to the all the organisms, all the plants and the animals as well. So you just considered about to we are living to the forming into the home, and that's to the presenting to the special areas
which are impacting to each other. So that's to the all the organisms which are inseparably related to each other, from the physical their physical and biological or biotic environment. Environment. So biotic environment, the environment which are have to the there are the two things which know that very well about to the there are organisms which are live in the area and inseparably related to each other from their physical and biological surrounding. Physical and biological surrounding. What do you think about the surroundings? There are, first of all, is better known what is the surrounding. I was tell about what is the environment. Environment is the space which are leave to the organism and doing the proper work for that to the survival or the showing to the particular their phenomenon. So here there are the organisms inseparably related to each other, physical and the biological surrounding. The system and the surrounding is called to the environment. The system and the surrounding. So that तो आज के चैप्टर में हम बेसिक 30 से रिलेटेड टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जो कि टॉपिक है वो आपका इकोलॉजी है। और इकोलॉजी के अंतर्गत हम जो है ऑर्गेनिज्म और उससे जुड़े वातावरण के संबंधित जो चीजें अंदर क्रियाएं होती हैं उसके बीच में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण या फिर वातावरण क्या होता है और वातावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आज देखते हैं। तो हमने कहा कि inseparably related to each other the physical and the biological surrounding. So system and the surrounding which are called to the environment. System plus surrounding is called to the environment. System and the surrounding are the area, and that's the system in the system to the organism which are performed. तो सिस्टम के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी सारी एक्टिविटी और सारे फंक्शंस और जो है अपनी अलाइनमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जिसके अंतर्गत वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो सराउंडिंग कहती हैं। वो उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो या फिर जो है जो माहौल होता है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज है कि दो चीजों की बात की जा रही है, फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग की बात की जा रही है। इसका मतलब होता है, देखिए फिजिकल को और क्या बोला जा सकता है, ध्यान दीजिए। फिजिकल को नॉन लिविंग बोलते हैं, नॉन लिविंग। फिजिकल को और क्या बोला जा सकता है, और फिजिकल को और क्या बोला जा सकता है, अबायोटिक। बायोलॉजिकल को क्या बोलते हैं, अब ध्यान दीजिए, लिविंग। और इसको क्या बोल सकते हैं, बायोटिक। इस प्रकार से बहुत सारे नामों से ये सब जाने जाते हैं। तो these are the represented by the different names to the physical or the non-living or the abiotic
बायोलॉजिकल इज द लिविंग और द बायोटिक एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से ये इस सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो लिविंग और नॉन लिविंग जो वातावरण होते हैं, जो पर्यावरण उनका होता है, वहाँ पे जो रहते हैं, एनवायरनमेंट जो होता है उनका, वहाँ पे वो रहते हैं और आपस में बिना अलग हुए एक दूसरे से उचित ढंग से जुड़े हुए और अपने उनके भीतर अंतर क्रिया करते हैं। ये बात हम इकोलॉजी के अंतर्गत आपको बता रहे हैं। हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा जाता है हिंदी में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट रिगार्डिंग टू द इकोलॉजी फॉर दैट टू द इकोसिस्टम। So there are the two kinds of the surrounding, physical and the biological surrounding. तो कह सकते हैं कि इसके हिसाब से this type of the relationship of the organism with their physical and biotic environment is studied into the different discipline or the under different discipline is called to the ecology। मतलब क्या, जबकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म which are inseparably related to each other, they are physical and the biological surrounding, so that this type of the relationship of the organism with their physical and the biotic environment, which considered, which studied in the different discipline of the science is called to the ecology। क्या कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा साइंस का जो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, वो उनके आपस में जो उनके वातावरण या पर्यावरण के बीच में जो अंतरक्रिया होती है उसका अध्ययन करते हैं। सीधी सी बात है, द स्टडी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड टू द ecology। So that ecology is representing to the special type of the plants which are indicating to the morphology and to the physiology of the animals and to the plants as well। So here ecology is the branch of science which deals with the study of to the organism and their environment, the physical and the biological, and the physical is the non-living or the abiotic, and the biological is the living or the biotic। So that is the mutual or the interaction between the physical and the biological along with organism। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि इकोलॉजी उसको बोला जाता है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको वो अपने लिविंग और नॉन लिविंग जो मटेरियल होता है उनके बीच में जो नॉन लिविंग जो मटेरियल होता है उनके बीच संबंधों को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत अब इसको जो है इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी बोला जाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं हम इसको। एनवायरमेंट से जुड़ी जो चीजें होती हैं और उसके साथ में जो धारी भी जुड़े होते हैं उनके बीच में अंतर क्रिया होती है, उनके बीच में लेन देन होता है, पारिस्थितिक रूप से वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसके आधार पे हम जो है इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत वही सारी बातें आएंगी जो कि इकोलॉजी में हमने बताई। तो अब आप तो ये समझ चुके होंगे, you know that very well and you better understand about the ecology, and so that Anhas Haeckel is the first। So first of all, the reader who is the man is given to the description of the ecology, who is the first given to the first word to the ecology। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? इकोलॉजी इज देयर आर formed by two words। This is the Greek word
First is oikos. Oikos is the home or habitat. Home or habitat, and the logos is the discourse or the study. Discourse or study. Study up to the habitat of the organism is called to the ecology. In the summary, in the brief words, तो हमने कहा कि इकोलॉजी को जो ग्रीक वर्ड है उसका उसमें दो शब्द होते हैं, ओइकोस एंड टू द लॉगस. ओइकोस इज द होम ऑफ द हैबिtat एंड द लॉगस इज द डिस्कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द हैबिtat और द होम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टू द इकोलॉजी. इकोलॉजी के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवधारी होते हैं, और जो उसका जो जहाँ पे वो निवास करता है, जहाँ पे रहता है, उसके वातावरण को बोला जाता है. तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसके, लेकिन मैं यहाँ बता रहा था, जो रीटर की बात कर रहा था, रीटर जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस ग्रीक वर्ड के माध्यम से बताने का प्रयास किया, पहले टर्म को दिया इकोलॉजी. रीटर इन द 1968 who is the given to the term of the ecology, that is the study of the habitation of the organism. तो हमने कहा हैबिटाट है, हैबिटाट के बारे में बताया. तो उन्होंने 1968 में सबसे पहली बार इस इकोलॉजी वर्ड को दिया, लेकिन प्रॉपर ढंग से एक जैसे बोला जाता है, इन द कन्वीनियंट एंड द बेटर एक्सप्लेनेशन of the ecology that's given was the Ernst Haeckel is the one of the finest ecologists, explained to the better way for the understanding, so that to the after that to the reader the Ernst Haeckel which give the description or the for the ecology. The description is given by the Ernst Haeckel, so that all the credit goes to Ernst Haeckel. तो कहने का मतलब होता है कि रीटर ने जो है पहली बार शब्द तो दिया, लेकिन कन्वीनियंट और प्रॉपर ढंग से उसको जो है एक्सप्लेन करने वाले Ernst Haeckel थे, जिन्होंने अच्छी तरीके से इकोलॉजी को एक्सप्लेन किया कि इकोलॉजी होता क्या है और इकोलॉजी को क्या कहा जाता है. इसके बाद हम देखते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे दो बातों को समझनी पड़ेगी कि हमने जाने इकोलॉजी और जो है इस तरीके से हमने कहा. तो अब हम यहाँ पे Ernst Haeckel के द्वारा जो दिया गया क्या कहते हैं डेफिनेशन है, उसको समझते हैं, उसके आधार पे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इसको कहा जाता है. तो Ernst Haeckel के द्वारा जो वहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा. उनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से ये होता है, इट इज द रिलेशन ऑफ एनिमल्स, this is the definition, special definition of the ecology which are given by, it is relation of the organism of animals to its animals and its organic as well as animals and its organic bracket physical as well as its inorganic या its inorganic this is the non-living and this is the
this is the living and this is the non-living. It is the relation of the animals and its organic, or in the bracket is the living as well as its inorganic, in bracket non-living environment. Particularly its friendly or hostile. Particularly its friendly or hostile relations to each other and its environment and to their environment. This is its a proper and better ecology definition which is given by the Ernst Haeckel. It is the relation of the animals and its organic, which is also called to the living as well as the inorganic, which also called to the non-living. Particularly its friendly or hostile relation to each other and their environment. For the better explanation, I discuss to the Ernst Haeckel. According to the Ernst Haeckel, this is the finest relationship in between to their organism. Organism is basically is the living, and along with their non-living component as well, which are related to each other with their environment. But the relationship is the hostile or the friendly. Just consider that this is the type of the relationship, but there the relationship is the indicating two way. Is the firstly is the friendly or the hostile. कहने का मतलब होता है कि ये अर्नस्ट हैकेल के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया उसमें ये बताया गया कि ये एक प्रकार का रिलेशनशिप है जो कि ऑर्गेनिक और जिसको लिविंग बोलते हैं, और उसके साथ साथ में इनऑर्गेनिक जिसको जो है नॉन लिविंग बोलते हैं। लेकिन ये जो रिलेशन है वो आपस में फ्रेंडली भी हो सकता है और हॉस्टाइल भी हो सकता है। मतलब जो है वो आपस में लाभकारी भी हो सकता है और एक दूसरे पे को नुकसान या हानि भी पहुंचा सकते। ऐसा कुछ इसमें जो है इस प्रकार का रिलेशनशिप जो होता है उसी को अध्ययन करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द अर्नस्ट हैकेल, दैट इज इकोलॉजी is the finest science finest branch of the science which comprises to the relationship in between to the animals and the plants along with their environments, and just indicate that to the friendly or hostile, ये फ्रेंडली भी हो सकता है या हॉस्टाइल हो सकता है। फ्रेंडली का मतलब होता है कि एक दूसरे से जो आपस में अंतर क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे, या फिर एक दूसरे का सहयोग करते हुए उस पूरे जो इकोसिस्टम होता है उसको चलाएंगे। जबकि दूसरे प्रकार से दूसरे थिंक में ये हो सकता है कि वो उस पर पैरासाइट के रूप में या फिर उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहे और उसको हानि भी पहुंचाते रहे। तो दोनों प्रकार के जो सिनारियोज होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो इसमें देखने को मिल सकते हैं और ये इकोलॉजी के अंतर्गत जो है संभव है। और यहाँ पे इस प्रकार का रिलेशनशिप एनिमल्स और उसके एनवायरनमेंट के बीच में होता है और जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इकोलॉजी का
डेफिनेशन था और इकोलॉजी के डेफिनेशन थे। लेकिन हम अगर शॉर्ट में ये कहा जाए कि इकोलॉजी किसे बोलते हैं, तो हम ये शॉर्ट में ही बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज, द स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज इज आल्सो कॉल्ड द इकोलॉजी, स्टडी ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज। अब आप सोच रहे होंगे बायोटिक कम्युनिटीज क्या है? कम्युनिटीज, द पॉपुलेशन एंड देन कम्युनिटीज, दैट इज द यूनिट्स इन द गो अहेड। जैसा हम अब जब आगे बढ़ेंगे लेक्चर में बताएंगे आपको बैक टू बैक कि जो आप अभी आज इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी का इकोसिस्टम होता है, तो इकोसिस्टम जो होती है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है इकोलॉजी की, और उसके अंतर्गत जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसके आपस में और उसके पर्यावरण के साथ में, तो उसी रिलेशनशिप को, उसी म्यूचुअल रिलेशनशिप को, उसी इंटरेक्शन को जो कि इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, वहां पे पूरे इकोसिस्टम को ही रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि बायोटिक कम्युनिटीज क्या है। कम्युनिटीज जो होती है वो बिग सेंस है, ब्रॉड सेंस है। यहाँ पे कहने का मतलब होता है ग्रुपिंग होती है, तो जब ग्रुपिंग हो जाती है सेम टाइप के इंडिविजुअल के बीच में, तो वो पॉपुलेशन कहलाता है। लेकिन जब वो आगे और बढ़ता है, उससे आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इफ द इन one of the any kinds of the groups which are have to the heterogeneous condition, which means that to the animals, plants and to the microbes along with, so that is called to the biotic communities. Study of the biotic communities is also called to the ecology. जब हम की बायोटिक कम्युनिटीज का अध्ययन करते हैं उसी को इकोलॉजी बोला जाता है। शॉर्ट शब्द में हम ये कह सकते हैं, लेकिन सबसे फाइनेस्ट जो डिफिनेशन है वो इसको कहा जाता है द स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट इन देयर रिलेशन टू ईच अदर। द स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू रिलेशन टू स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर रिलेशन टू ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। पहले तो प्लांट का एनिमल से इनके बीच में रिलेशन हो और फिर उसका उनके पर्यावरण के बीच में हो। तो चूंकि क्या जो ऑर्गेनिज्म जो जीवधारी होता है, मैंने जैसा पहले भी बताया कि वो एक विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति के हिसाब से, विशेष पर्यावरण में एक स्थान पे रहता है, तो वहाँ पे सारे जो वातावरण के या पर्यावरण की जो भी जो फोर्सेस होते हैं, जो उसके फैक्टर्स होते हैं, वहाँ पे उसको प्रभावित करते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स दैट ऑल द फोर्सेस व्हिच आर given and that to the animals or the plants or the microbes which are अपने आप को वो क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, अपने आप को जो है वो क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। तो इस प्रकार से वो इन्वायरमेंट में जीवित रहते हैं। तो ये दो, अब यहाँ से हमने कहा कि ये फाइनेस्ट चीजें थी जिसको हमने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं कि जो है ये क्या कहते हैं कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी के टाइप को देख लेते हैं, इकोलॉजी के टाइप को समझ। अब जैसा मैंने कहा कि टाइप ऑफ द इकोलॉजी हम समझ लेते हैं, तो टाइप ऑफ द इकोलॉजी के अंतर्गत देखिए क्या होगा, टाइप ऑफ इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोलॉजी। तो टाइप ऑफ इकोलॉजी में देखिए तो दो विशेष दो ही प्रकार होते हैं इसके, ऑर्टिकोलॉजी, कोलॉजी, और दूसरा होता है सिनिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी। देखिए दो वर्ड्स हैं, आर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ये भी जब ग्रीक वर्ड से आए हैं, तो ग्रीक वर्ड में इनका मतलब है, तो आप देख लेते हैं ग्रीक वर्ड में क्या है। अब ग्रीक वर्ड में ऑटोस का मतलब क्या होता है, ऑटोस का मतलब क्या होगा, सेल्फ, ठीक है। और सिनको का मतलब क्या होगा ग्रीक वर्ड में, सिन मतलब टुगेदर। अब थोड़ा समझे इसका क्या मतलब आ गया। ऑटोस मतलब सेल्फ, सिन का मतलब टुगेदर। तो सबसे पहले एक एक करके लेते हैं आर्टिकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी क्या है, आर्टिकोलॉजी स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप। ये समझे पहला वाला, आर्टिकोलॉजी इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन टू द species of the species and
relationship of a species and interrelationship of the species and biotic or abiotic, biotic or abiotic environment. The interrelationship of the species and the biotic or abiotic environment की बात करते हैं हम यहाँ पे। मतलब क्या हुआ? इंटररिलेशन, ऑटिकोलॉजी का मतलब ये होता है, ऑटोस इज द सेल्फ, व्हिच मीन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को आप समझें, ऑटोस इज द सेल्फ व्हिच मीन दैट टू द अ स्पीसीज, a species, so many kinds of the species which are found into the nature, but there are the types of the ecology, branch of the ecology. In the first is the articology, is the autos is the self, which means that the study of the a species and their biotic or abiotic environment. जब कभी इस प्रकार का रिलेशन हो जहां पे कोई एक स्पीसीज और उसके एनवायरनमेंट के बीच के संबंध को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, दिखाया जाए, तो वो आर्टिकोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि इकोलॉजी का पहला ब्रांच है। और ये विच इज रिलेटेड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द लाइफ, रिप्रोडक्शन एंड द न्यूट्रिशन। दिस इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, reproduction, growth and development, so मतलब कि पूरी लाइफ हिस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री of the species. So that's why is called to the species ecology. आर्टिकोलॉजी को इसीलिए स्पीसीज इकोलॉजी भी कहा जाता है। स्पीसीज इकोलॉजी कि एक विशेष प्रकार की या एक स्पीसीज की यहाँ पे बात होती है, उस स्पीसीज के न्यूट्रिशन की बात, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री, पूरे लाइफ हिस्ट्री की बात होती है, तो इसलिए इसको आर्टिकोलॉजी कहा जाता है। ऑटोस इज द सेल्फ। जबकि अब देखिए सिंकोलॉजी का क्या मतलब है? सिन का मतलब होता है टुगेदर। अब यहाँ पे वही थोड़ा सा डिफरेंस करना है, little bit differences which are occurred in the syncology, which means that the syn is the together when the species, the different species or the different groups of the living organism which are interacted to each other, that is called the syncology. जब कभी विभिन्न या दो या दो से अधिक प्रकार के जब कोई ग्रुप और उनका इंटरेक्शन उनके अपने वातावरण से होता है, तो उसका अध्ययन हम सिंकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि हमने दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इज हियर सिन इज द टुगेदर व्हेन द टाइम of the different types of this species, different group of this species, that like to the, that means to the population ecology, community ecology, population ecology, इसका मतलब क्या था? जब कभी different a group of different species
डिफरेंट स्पीसीज, तब इसको बोला जाता है सिनिकोलॉजी। जबकि अब देखिए डिफरेंट शब्द आ गया, दिस इज द राइटिंग हियर टू द डिफरेंट स्पीसीज सो दैट दिस द ग्रुप इज कॉल्ड द सिनिकोलॉजी। तो यहाँ पे एक से अधिक या दो से अधिक जब ग्रुप आपस में जो है मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी पॉपुलेशन और कम्युनिटी की बात की थी, पॉपुलेशन भी इसके अंतर्गत आ सकता है क्योंकि वहाँ पे भी एक विशेष प्रकार के ग्रुप के अंतर्गत होता है। उसके बाद जो है कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोला जा सकता है कि वहाँ पे कम्युनिटी तभी इस्तेमाल किया जाता है जबकि वहाँ पे प्लांट का, एनिमल्स का, माइक्रोब्स का या एक विशेष प्रकार के ग्रुप की बात होती हो तो वहाँ पे उसको जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा आज की इकोलॉजी पर हमने उसके पार्ट को, टाइप्स को बताया, जो कि अलग अलग जो है स्ट्रीम से या अलग अलग कंडीशन को रखते हैं और वो कंडीशन को हमने अभी रिप्रेजेंट किया। जबकि इसके अंतर्गत हमने कहा कि पॉपुलेशन इकोलॉजी आएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, so that this is called to the syncology. So I hope you are better understand about the articology and the syncology, because this is the other species and the different type of the species, so that this is on the basis of that's why it's called to the species ecology or the population ecology or the community ecology in the respectively. So there are the two types of the ecology. तो सब डिविजन्स थे, हमने आपको बताया। तो इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि क्या इकोलॉजी होता है। तो कुल मिला के समरी ये निकली कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टू द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ द बायोमेट्रिक कम्युनिटीज अलॉन्ग विद देयर एनवायरनमेंट। इट इज द टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इन बिटवीन टू द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक along with their environment। तो अपने environment के साथ में जब कभी living और living entities का जो है जब बात आती है तो वो इकोलॉजी कहलाता है। अब हम अगले चैप्टर में इससे संबंधित चीजों को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।